सब पीपल क्या चल रहा है वी अगेन बैक with one more video and again it's a lead code problem but let me be very clear here that I do decide to continue video making because of such cute reactions I got from my friends and some of my family members but yeah, they'll be majorly knowledgeable videos again as I said in the last this lead code wala video that we had but they won't only revolve around lead code. That's a for sure thing. Right now they are lead code because I'm not getting any other idea what I should make video on or whatever. Let's say it this way. So हाँ, और ये मैं ऐसे एक बैकग्राउंड खोल लेती हूँ जस्ट सो दैट कि आई मीन इफ मेरी आवाज़ तुम्हें बोरिंग लगे तो यू हैव समथिंग टू लुक एट एंड दीज आर एसेंशली वन ऑफ द नाइसेस्ट फोटोज आई हैव. इट वॉज अ नाइस सनसेट टुडे. दिस इज़ टुडेज फोटो ओनली. तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं. तो आज का क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न द सम ऑफ डिविजर्स ऑफ इंटीजर्स इन दैट अरे दैट हैव एग्जैक्टली 4 डिविजर्स. This is as confusing as hell, but never mind. If there is no such integer in the array. Okay, let me not pretend कि मैं ये पहली बार पढ़ रही हूँ because I've already solved it. But yeah, this was my reaction जब मैंने पहली बार पढ़ा था. तो क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है कि you have numbers in an array and then all those numbers that have 4 divisors, you essentially need to return the sum of divisors of all those numbers. तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 21 4 7 वाली. तो लेटर्स कौन सा कलर लें? एकदम अतरंगी लाल. हाँ, तो बेसिकली देखो 21 4 7. अब 21 के डिविजर्स देखते हैं क्या क्या है. 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से नहीं होता है, 3 से हो जाता है, 7 से हो जाता है, 21 से हो जाता है. वाओ परफेक्ट, 4 ही हैं. 4 के देखते हैं. 1 है, 2 है, 4 है. शिट 9 क्योंकि 3 ही है ना. एंड 7 के देखते हैं. 7 के हैं, 1 और 7 है. ये तो बेचारा प्राइम नंबर. तो एसेंशली हमें क्या रिटर्न करना है. वी रिटर्न 1 + 3 + 7 + 21 दैट इज़ 32. अगर सपोज 21 दो बार होता तो हम 64 रिटर्न करते बिकॉज हमें ऐसे सारे नंबर्स का सम ऑफ डिविजर्स रिटर्न करना. तो लेट अस से तो मतलब दिस इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इफ़ वी सी इट दिस वे. सो एसेंशली व्हाट वी डू इज़ फॉर अ गिवन अरे दैट वी हैव A, B, C, what we do is we iterate through each of the number in that array and for each number x, we find the divisors of x. What we do, we find the divisors of x and if the count of divisors of x, the number of numbers that divide x, if this count is 4, then what do we essentially do is we do sum of these divisors for all those x's. We do sum of these divisors and then we return this. So this is what question demands and then let us see how do we essentially approach it. So how do we do is that suppose this is your main function that has input as vector. Let us have a short notation of vector because each time let us not write that long. Vec. Suppose we have input as vec int input. Okay. So what we do is, so we iterate. So for int I is equal to 0, I less than input ka size I plus plus. What do we do? In a very layman term, I mean, let us not follow on the syntax here. I'm majorly like black boxing the complete code. So not black boxing, abstract. So what do we do is we find divisors. So what we do? Let us say we have a function find divisors that return the divisors. So we say vector int divisors is equal to find divisors of this number x input I. We find the divisors of it and then we check if divisors ka size 4 hai. If it's 4, then what do we do is we have this variable int answer is equal to 0 say. We do answer plus is equal to sum of all numbers that belongs to this divisors of this as in of divisors. So the main thing that we have here is how do we find the divisors of a particular number. The complete question boils to there.
So let us just focus on that part then, that given a number x, I need to find divisors of x. तो लेट अस से कि इसका सबसे ब्रूट फोर्स करते हैं अपन. इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा कि हम आइट्रेट करें 1 से लेके x तक और हम चेक करें, से हम i से आइट्रेट करवा रहे हैं, हम चेक करें इफ़ x मॉड्यूलो i इज़ 0, तो हाँ i इज़ अ डिविजर. तो हम डिविजर्स वाली जो हमारे मेंटेन कर रहे हैं डिव्स, हम उसमें पुश बैक करते रहें, पुश बैक आए, है ना. बट ये तो थोड़ा ज़्यादा ही ब्रूट फोर्स हो गया, क्योंकि सपोज़ n नंबर्स हैं, तुम हर n के लिए दोबारा आइट्रेट कर रहे हो, तुम समझ रहे हो ना. तो लेट अस इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं. तो बेसिकली ये जो हमारी लूप बनेगी, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस दैन इक्वल टू x, i प्लस प्लस x इज़ ओवला नंबर जिसके हम डिविजर्स निकाल रहे हैं. इफ़ x मॉड्यूलो i इज़ इक्वल टू 0, देन जो हम अरे जो रिटर्न कर रहे हैं डिव्स डॉट पुश बैक i, है ना. इसको हम क्या कर सकते हैं, हम x तक ना आइट्रेट करवा के हम स्क्वेयर रूट ऑफ x तक आइट्रेट करवा देते हैं. क्यों? क्योंकि आफ्टर स्क्वेयर रूट x बेसिकली कौन से नंबर्स आ रहे हैं. तो सपोज़ हम एक नंबर लेते हैं 16, ठीक है. अब हम 16 के डिविजन्स निकाल रहे हैं. तो हमने देखा 1 16 को डिवाइड करता है, हाँ 2 करता है, हाँ 3 करता है, नहीं 4 करता है, हाँ 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हाँ, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 करता है, हाँ. तो तुम रियलाइज़ करोगे कि ये तो पेयर्स हैं, राइट. बेसिकली इधर जैसे 1 और 16 पेयर है, 8 और 2 पेयर है, और 4 तो चलो खुद में ही. तो अगर मैंने देख लिया 2 डिवाइड करता है, तो लेट मी जस्ट से इट कि जो डिव्स वाली आपकी अरे है उसमें 2 और 8 दोनों आएंगे. वाई दिस विल हैपन, एसेंशली आई विल ऑल्सो कम एंड n बाई आई विल ऑल्सो कम, है ना. एंड अनलेस एंड अनटिल i इंटू आई इज़ इक्वल टू 16, जो कि 4 के केस में वी डोंट वांट इंक्लूडेड डबल. तो दिस वाज द फर्स्ट हाउ यू ऑप्ट. इस पर टेक नहीं आएगा. तो इसके बाद what you can just do is you can modify the loop to just iterate till square root of x, and if you find that x modulo I is equal to 0, in the divs array you push back not only I but you also push back x by I, and but you, in this case you only iterate till root x. But here there's an important check that you don't need to push the same number back again. So just check if I into I is not equal to x. Okay, so this is the second optimization out there. Then so let us see the code इसका, and then एक और अच्छी approach है, we'll just discuss that. मेरे कोड से देख लेते हैं. ओह सॉरी, नीचे को आता है क्या. हाँ तो दिस इज़ व्हाट वी डिड. तो हमने आंसर को 0 इनिशियलाइज़ किया, हमने आइट्रेट किया पूरी अरे में, एंड देन हमने क्या किया, हमने इस नम्स आई के डिविजर्स निकाले. तो ओके आई गेस एक मिनट, हाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि पेस्ट. ओह नाइस, ठीक है काम चलाओ, बट नेवर माइंड. भैया हम भी पहली बार ही आईपैड यूज़ कर रहे हैं. इसे नीचे कैसे लेके जाते हैं, हाँ हो गया. और इसको भी थोड़ा नीचे, हाँ डन. अरे नहीं, अरे भैया हो जाओ, हाँ चलो हो गया जैसा भी है. हाँ तो इधर देखो क्या हो रहा है कि वी स्टार्ट हियर आंसर को 0 इनिशियलाइज़ किया, फिर आइट्रेट किया, एंड देन देयर वी हैव अ फंक्शन फाइंड डिविजर्स. फाइंड डिविजर्स में क्या हो रहा है, हम स्क्वेयर रूट n तक आइट्रेट कर रहे हैं. बट वी डू इज़ इफ़ n मॉड्यूलो i 0 है तो हम i को तो पुश बैक कर ही रहे हैं, n बाय आई को भी कर रहे हैं, बट ये वाली कंडीशन चेक करके कि 2 बार ना पुश हो जाए. जैसे 16 के केस में 4 2 बार पुश हो जाएगा. और इसमें थोड़ी और ऑप्टिमाइजेशंस लगाई हैं कि सपोज़ पहले ही आपको पता लग गया जब तुम डिविजर्स निकाल रहे हो कि 4 से ज़्यादा डिविजर्स हैं, तो वी initially return false and 0. So basically I return a boolean that is this a valid array that we have, and sum also I'm calculating in the same function. So yes, I guess we are clear on that.